everyone. Today I am going to tell you about what are you seeing in this video, in this picture. You are seeing one polythene inside that white floor, and on the polythene it has a green chili and it has a red dry chili. तो आज हम बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सस्पेंस भी है और थोड़ा एक्सप्लेनेशंस भी है, तो ये समझना होगा कि मैं क्या बात करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ। आज का टॉपिक लिया है मैंने मैदा। तो मैदे के बारे में सभी लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो बताती हूँ। मैदा जो है एक फ्लोर है, जैसे कि आटे के विषय में सभी लोग जानते हैं, व्हीट फ्लोर, आटा। ऐसे ही मैदा जो है वो भी व्हीट का ही फॉर्म है। वो भी व्हीट जो है वो थोड़ा सा मीडियम साइज का ग्राइंड होता है। जो मैदा होता है रिफाइंड होता है। मैदा जो होता है व्हीट का जो मीडियम फॉर्म होता है उसको और भी ग्राइंड किया जाता है। व्हीट को और ग्राइंड किया जाता है, तब वो बन जाता है मैदा, सफ़ेद मैदा, जिसे वाइट फ्लोर भी बोला जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैदे के विषय में, जिसे वाइट फ्लोर भी कहा जाता है। तो किसी ने इतनी प्यारी कविता लिखी है मैदे पे, तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यारी सी कविता मैदे के ऊपर। कभी सफेद चादर में लिपटा, नाजुक सा पर दिखता सस्ता, हर रसोई का ये साथी, हल्का मुलायम गुनगुना प्यारा। रोटी पराठा पूड़ी बनाइए, मीठे में भी ये स्वाद जगाए। नॉन टेस्टी केक हो चाहे, मैदा हर रूप में रम जाए। अंदर छुपी उसकी नरमी, हर खाने को ये बना देती है गर्मी। पर ध्यान रहे, इस सफेदी में छुपा है सेहत का एक पहराव। तो जब भी देखो इसे रसोई में संभाल कर रखना, इससे दोस्ती स्वाद से भरे हुए पल देना, पर सेहत का भी ध्यान रखना कि तुम कितना इसको खा सकते हो। अब मैदे का जो आटा है सफ़ेद और खामोश, हर निवाले में घुटता एक राज। पर याद रहे, मर्जी से इसका चलना कभी कभी थोड़ा और बहुत सादगी से भरा होता है। वाह वाह वाह, क्या कविता है मैदे पे। अब मैदे पे ही जो मैदा फ्लोर है उस पे बहुत ही प्यारी सी पोयम है जो मैं सुनाने जा रही हूँ। White as a cloud, soft and light, maida flour is baker delight. In every kitchen it is found with the easily, and the turning meals into tasty that please. It fold into a dough and the smooth and fine for the bread, for cakes, and it always shine puffy up into parathas and naan, or a sweet pastries, warm and the drop. But beneath its silky and the gleaming grace, and the lace and the caution, and in its stings, for health can sometimes take a toll if we let maida play too big or roll. So mixture is with love, with care in mind, a little here, a little there, in measure kind. For its moderation, it can bright and joy to the table in every meal. Maida, the floor of delicate charm, and the handle with the care, and it will do no harm. In each bite,
unfolds a story of balance that never grow old. Beautiful poem on मैदा फ्लोर। अब मैदे के बारे में बात करते हैं कि मैदा ऐसी क्या चीज़ है जो इतनी सारी चीज़ें इससे बनती हैं, डिलीशियस चीज़ें, केवल इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे बनती हैं इसकी चीज़ें, ऑल ओवर वर्ल्ड बनती हैं, कॉन्टिनेंटल फूड्स में बनती है, इंडियन फूड में तो बनती ही बनती है। तो जो मैदा फ्लोर है वो बहुत विटल रोल अदा करता है हर एक फास्ट फूड में, होम फूड में और काफ़ी आइटम्स में ये बहुत ही उम्दा रोल अदा करता है। तो आज मैदे के बारे में जानकारी ली जाए। तो मैदा, commonly known as all-purpose flour, is a finely mild, refined white wheat flour. It is widely used in various cuisines, especially in baking and making of pastries, bread, and other processing foods. And however, we can consume means has some implement for the health also. If nutrients, we can talk about its nutrients. Low in fiber. Maida is made of removing the grain of that germ for the wheat and the leaving mostly the this means fibers, and this process is away from means much of the fibers, vitamins, and the minerals form in the whole grains, but it is very low in maida. So high glycemic index it has means जो मैदा has a high glycemic index means meaning of it can cause a rapid spring in the blood sugar level after the cause some patients that this can be the concern for the people with diabetes or the other risk of the developing it. And the low nutrient values well, it has means while maida provide the calories and the carbohydrates, and it lack essential nutrients like vitamins, minerals, and the fiber that are present in whole grains. And the health wise, its weight gain means that maida, this food made with the maida, are the often calories decrease, that means low in fiber, and making them less filling and more likely to be the contribute to the overeating and the weight gain also. And we are talking about that blood sugar, and due to this high GL means consuming of maida based on the product can lead to the sharp increasing in blood sugar level, and which over time can increase the risk of type of diseases in their bodies. And we are talking about the digestive issues. The lack of a fiber in maida so can lead to digestive problems such as the constipations, and the heart problem is heart health problem. Regularly consuming this refined gain like a maida has been the link to the and the increasing risk of the heart diseases, and this is a particular being the refined grain can contribute to the obesity and the increasing blood sugar level and the cholesterol level also. So it has a alternative means a whole wheat flour means rich in fiber, nutrients, and
is a blend of different grains, and this flour often a variety of nutrients, and it's generally lower in the GI and the maida leaves. We are talking about the next level means almond flour and the oats flour and the coconut flour. It is the richest food. Means these are the low carbs and the high fiber alternatives that are the often used in the gluten free baking. But we have to put it this one, but the little amount you can put it in place of this. अब कंक्लूजन की बात की जाए तो while the maida is कंक्लूजन की बात कर ली जाए तो while maida can be used occasionally in the moderation means it is the best to limit of the consumption and the of means for the healthier alternatives and the like a whole wheat or the multigrains flour. And this can be the helping point of view means its help. This can be help in their others overall the health and the reduce the risk of the other diseases like that. अब बात तो ये है, सच बोलूँ तो बात तो ये है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा खाओगे तो आपको हेल्थ की प्रॉब्लम आनी ही आनी है। यदि लिमिट में कोई चीज़ भी खाई जाती है तो उसको प्रॉब्लम नहीं आती है। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करी जाए मैदा, अब जिसे आमतौर पर रिफाइंड आटा भी कहा जाता है, एक प्रकार का गेहूं का आटा जो अत्यंत उसको अच्छे से और ज़्यादा ग्राइंड कर दिया जाता है तो वो बन जाता है मैदा। तो ये गेहूं के दाने के बाहरी छिलका और भूसी को हटाकर बनाया जाता है और जिससे जिससे इसमें जो अधिकांश पोषक तत्व जो है जैसे कि फाइबर है, विटामिन है, खनिज है, वो सब निकाल दिया जाता है। अब इसके बाद इसे बहुत बारीक पीस करके तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? ऑफ कोर्स मैदे का फ्लोर। अब मैदे का जो उपयोग के बारे में बात करी जाए तो इसका जो उपयोग होता है बेकिंग में होता है। मतलब जो मैदे का जो उद्योग है, जो केक बनाना, पेस्ट्रीज बनाना, कुकीज बनाना और जो ब्रेड जैसे उत्पाद बनाने में मैदे का ही यूज किया जाता है। अब भारतीय व्यंजन की बात करी जाए तो भारत में जो है मैदे का उपयोग पूरी, पराठा, नान, समोसा, कचौड़ी जैसे विभिन्न व्यंजनों में प्रयोग किया जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है बनने के बाद में। लेकिन मैंने बोला ना कि कम चीज़ें खाने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा खाने पे ही तो प्रॉब्लम आती है शरीर में। अब इससे क्या बनता है? अब देखिए नूडल्स और पास्ता भी बनाया जाता है। मैदे का उपयोग जो है नूडल्स और पास्ता बनाने में भी होता है और अदर फूड प्रोसेसिंग फूड बनाने में भी मैदे का प्रयोग किया जाता है। जैसे लच्छा पराठा है, वही मैंने बात करी, काफ़ी चीज़ें बनाने में मैदे का प्रयोग होता है। अब मैदे के सेवन से नुकसान क्या चीज़ है? जैसे जो इसका फाइबर जो होता है, फाइबर की कमी होने के कारण जो मैदे में जो फाइबर बहुत कम मात्रा में होता है तो इससे जो है पाचन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे क्या कब्ज की जैसी समस्या आ जाती है शरीर में। अब इसमें जैसे उच्च कोलेस्ट्रॉल मीन्स उच्च ब्लड प्रेशर की भी समस्या आ जाती है। जैसे मैदे का जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो उच्च होता है, इसी कारण इसे खाने पर रक्त में जो है वो इसके शक्कर जैसे जिसे चीनी भी बोला जाता है वो ब्लड शुगर में बढ़ा देता है, उसके स्तर को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। तो ये डायबिटीज़ के मरीजों और उनके ब्लड शुगर को भी नियंत्रित नहीं कर पाता है यदि ये ज़्यादा खाते हैं। तो इसके लिए जो हानिकारक हानियाँ हैं वो उसको ध्यान रखना चाहिए। अब वजन बढ़ाता है, मैदे से बने जो खाद्य पदार्थ हैं कैलोरीज इसमें अधिक होती है तो ये जल्दी ही पच जाता है तो इससे
भूख जल्दी लगती है और ज़्यादा ज़्यादा खाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और वज़न बढ़ने में भी सहायक होती है मैदा की चीज़ें ज़्यादा खाने से। अब दिल की बीमारी की बात करी जाए तो जो रिफाइंड है, जो अनाज ये है, रिफाइंड अनाज का पाउडर है, तो ये नियमित सेवन से डेली खाने से जो हृदय रोगों में एक जोखिम पैदा कर सकता है और ये मोटापा और उच्च ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है मैदा। अब इसके पोषण की बात करी जाए तो मैदे में आवश्यक जो पोषण तत्व हैं, जैसे इसमें जो मैदे में इसमें जो है पोषक तत्व की कमी होती है, तो क्या कमी होती है इस मैदे में? इसमें होता है जैसे विटामिन बी है, आयरन है और मैग्नीशियम की जो कमी होती है इसमें बहुत कमी होती है और जो इसे पौष्टिक आहार का हिस्सा बनाने से रोकती है इसको मैदा मीन्स वाइट फ्लोर। अब स्वास्थ्य के लिए विकल्प माना जा सकता है जैसे जो आटा है, जिसे गेहूं का आटा बोलते हैं। गेहूं का जो आटा होता है उसमें क्या फाइबर और उस पोषक तत्व की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो इसे मैदे से बेहतरीन बनाता है। अब इसकी बात करें जो मल्टीग्रेन्स आटा जो होता है, ये जो है विभिन्न अनाजों का मिश्रण होता है और इसमें जो पोषक तत्व की विविधता होती है, डिफरेंसेस होते हैं, तो इसके साथ में इसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो वैल्यू होती है वो थोड़ी कम होती है और न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बाजार के आटे, चाय और जौ और नारियल ये सब जो कार्बोहाइड्रेट्स वाले फाइबर्स हैं, इसके विकल्प जो मैदे की बजाय इसको इस्तेमाल किया जाए, हाई हाई फाइबर्स के पाउडर्स को इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा है शरीर के लिए, बॉडी के लिए। अब इससे ओवरऑल निष्कर्ष यही निकलता है कि जो मैदे का जो सेवन है कभी कभी और सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अब इसमें जो है बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए जो है कि गेहूं का आटा या तो मल्टीग्रेन्स आटा या अन्य स्वास्थ्य के लिए अच्छे विकल्प का चयन करना चाहिए, अधिक फायदेमंद होना चाहिए और इससे कई प्रकार की स्वास्थ्य की समस्या से बचा जा सकता है और अधिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो लाइफ भी बढ़ जाती है। अब मैं ये बताऊं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि थोड़ा सा सस्पेंस है कि मैंने पिक्चर में क्या दिखाया है। मैदे के साथ में मैंने इसके ऊपर में ग्रीन चिली और रेड चिली क्यों रखा है? मैंने रेड चिली रखती या मैं रेड पेंसिल रखती तो मुझे बस रेड कलर दिखाना था मैदे के ऊपर, क्योंकि मैदे का जो कलर होता है वो वाइट है और ऊपर मैंने चिली रखा हुआ, रेड चिली रखा हुआ है कि लाल मिर्ची जो लाल रंग की है, और नीचे मैंने ग्रीन चिली रखा है जिसका कलर है ग्रीन। अब थोड़ा सा माइंड को जोर डालिए और इमेजिन करिए कि वाइट प्लस रेड प्लस ग्रीन मिला करके कौन सा फ्लैग बनता है। यदि नहीं आप बता सकते हैं, यदि दिमाग में बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, फिर भी उसके बाद भी आप नहीं बता सकते हैं आप लोग, तो मैं ही बता देती हूँ कि यदि आप लोग वाइट कलर जो कि स्टैंडिंग लाइन में हो और जो रेड कलर स्लीपिंग लाइन में हो और जो ग्रीन कलर जो लाइन है वो भी स्लीपिंग लाइन में हो, तो इसको ड्रॉ करके देखिए रेक्टेंगल में तो कौन सा फ्लैग बनता है, किस कंट्री का फ्लैग बनता है। तो ज़रा आप लोग भी सोचिए और बताइए कि किस कंट्री का बनता है। आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं इसलिए मैं ही बता देती हूँ, ये कंट्री का बनता है मेडागास्कर। मेडागास्कर कंट्री जो है, आज हम बात करेंगे मेडागास्कर कंट्री के विषय में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, किसी भी चीज़ को आप कनेक्ट करके बात करते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड में रह जाती है। तो आज मैंने सोचा था कि मैदे के विषय में बात करेंगे तो उससे कनेक्टेड कौन सी कंट्री हो सकती है, तो मुझे मेडागास्कर कंट्री का नाम पता चला और मैंने उसके विषय में फाइंड आउट किया, जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। तो जो मेडागास्कर का जो फ्लैग है उसका कलर में वाइट कलर होता है, रेड कलर होता है और ग्रीन कलर होता है और वो राइट एंगल शेप में होता है
और जो वाइट कलर है मैंने बताया स्टैंडिंग लाइन होती है, और उसके बाद में रेड और ग्रीन के बीच में स्लीपिंग लाइन होती है, और स्क्वायर शेप में जब ये ड्रॉ करते हैं तो वो फ्लैग बन जाता है मेडागास्कर का। तो जो मेडागास्कर इज द लार्जेस्ट आइलैंड नेशन लोकेटेड इन द इंडियन ओशन एंड साउथर्न कोस्टल ऑफ द अफ्रीका, and it is the fourth largest island in the world and is known for a unique biodiversity and the ecosystems and the rich of cultural heritage. जियोग्राफी की बात कर ली जाए तो इसका जियोग्राफी है जो साउथर्न एशियन कोस्टल ऑफ द अमेरिका, इसका जो लोकेशन है अफ्रीका का जो साउथर्न एशिया कोस्टल एरिया है उसका, तो उस साइड में ये मेडागास्कर कंट्री पड़ता है। ये एक आइलैंड है, और इसका जो साइज़ की मेडागास्कर कंट्री का जो साइज़ की बात करी जाए तो ये जो है 5,87,041 स्क्वायर किलोमीटर की इसका साइज़ है, इसका एरिया है। अब इसकी कैपिटल की बात करी जाए, मेडागास्कर कंट्री के कैपिटल की बात करी जाए तो ये है एंटीनानारिवो। एंटीनानारिवो ये मेडागास्कर की कैपिटल है। एंटीनानारिवो मेडागास्कर की कैपिटल है। अब इसकी जो मेजर सिटीज़ है, एंटीगानी का कैपिटल जो है, और उसका तोइमासीना एक इसकी भी कंट्री भी है, और एंटीसरीरा भी इसके सिटीज़ है, और इसका महाजानका भी इसका एक सिटी मेजर सिटी है मेडागास्कर का। अब इसके जो पॉपुलेशन जो है यहाँ 29 मिलियंस पॉपुलेशन है मेडागास्कर कंट्री की। अब इसके एथनिक ग्रुप की बात करी जाए, जैसे कि द पॉपुलेशन इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ Malagasy people and with the various ethnic subgroup including the Marine and the Betsemi Saraga and the Betsilio and the Sakalavi, and there are also small communities are the French, Indian and the Chinese also used to live there. एंड द लैंग्वेज की जो बात करी जाए तो मालागेसी एंड द फ्रेंच आर द ऑफिशियल लैंग्वेज इन मेडागास्कर कंट्री, एंड Malagasy is the most widely spoken language in this island, and the French is used in a government or in the business and in education. अब इस गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट इसमें काम करती है मेडागास्कर में, तो बात करते हैं कि इसकी जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है, दिस इज अ सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, और इसकी जो प्रेसिडेंट है, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज इलेक्टेड बाय द पॉपुलर वोट्स। अब इनके प्राइम मिनिस्टर कैसे चूज किया जाता है, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस कंट्री। इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी जाए तो मेडागास्कर इज डिवाइडेड इनटू 22 regions that which are the further the subdivided into the district and the communities and the folk and tangi means the villages and the nearby woods. अब इसके जो इकोनॉमिक की बात करी जाए, इट्स करेंसी दे यूज दिस करेंसी द मालागेसी एरिया, दे यूज द मालागेसी एरिया करेंसी। एंड इसकी जो इकोनॉमिक की बात करी जाए तो मेडागास्कर इकोनॉमिक इज प्राइमरी बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर एंड द माइनिंग एंड द टूरिज्म। अब इसकी जो एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो मुझे भी सचमुच नहीं मालूम था
लेकिन आज पता चला कि एग्रीकल्चर वाइज द मेडागास्कर इज द लार्जेस्ट मीन्स vanilla is a plant is a vanilla is a seed of that plant vanilla plant. So it is means is agriculture wise the vanillas, cloves and the coffees and the rice are a key crop in Madagascar country. So Madagascar is the world's largest producer of vanilla. तो वेनिला का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इसकी माइनिंग की बात करी जाए तो द कंट्री इज रिच इन द मिनरल सोर्सेज इंक्लूडिंग ग्रेफाइट्स एंड ilmenite, chromite and the coral and the buxor and the precious stone like sapphires. अब इसके टूरिज्म की बात की जाए मेडागास्कर कंट्री के टूरिज्म की बात की जाए तो जो मेडागास्कर जो इज़ अ यूनिक एंड वाइल्ड लाइफ नेचर देयर एंड इंक्लूडिंग द मर्स मर्स एंड Mars and the Chaya Million, along with the stagnant landscape in their wildlife forest, and it makes it a popular densities for the ecotourism. अब इसके एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी की बात करी जाए तो यहाँ पर जो है मेडागास्कर कंट्री में फ्लोरा एंड फौना मीन्स मेडागास्कर इज नोन फॉर इट्स high level of biodiversity. Over 90% of its wildlife is found nowhere else on earth, and the island is home to like its as. और इसके जो है लेमर्स की बात कर दी जाए द मोस्ट फेमस मेडागास्कर एनिमल all over means 100 species of subspecies is the lemurs. Chameleons, that is the island host more than half of the world's chameleon species, and the unique plants also in this country, that is vanilla. Madagascar has the many other plants in there, but very famous is a vanilla plants. कन्वर्सेशन की बात करी जाए तो इसका डिफॉरेस्टेशन हैबिट ड्यू टू द स्ट्रक्चर एंड द क्लाइमेट चेंजेस आर द सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट इश्यूज इन देयर Madagascar ecosystem. Its culture is also very different. Means its regional culture is the majority of Malagasy people and the participate in the Christianity, and often that blended with the traditional beliefs, and there are also small Muslim communities also in there. Music and dance. So Malagasy music is diverse with the influences for the Africa, Asia, and the Europe, and traditional instruments including that they use valiha. Means valiha is an instrument that is a shape is a tube like zinhiya, and tube like zinhiya, that is instrument, and they use, and it's a koi bosi. Koi bosi is also another instrument that is a small the guitar like shape instrument, that is kai boss. And dance, it is and the internal part of the culture celebration. The cuisine की बात करी जाए तो जो ये Malagasy cuisine is rich based, often accomplished with the dishes of the meat, fish,
spices and the vegetables and the popular dishes including Roma Java is the meat feast that is a dish. अब इसके फेस्टिवल की बात करी जाए तो ट्रेडिशनल फेस्टिवल इट हैज farmer dai hana. Farmer dai hana is a festival in their Madagascar country. The tuning in there is of the bow and that are the Allaha Medi bee. They are that Malagasy New Year. This means Allah Medi bee is a Malagasy New Year. Are they celebrated with the music, dance, and the rituals? International relations, that is it's regional involved that Madagascar is the member of Africa Union and the Southern Africa Development Community SADC and the Indian Ocean Commissions also. इस ग्लोबल वाइज इसकी बात करी जाए तो this country maintaining the diplomatic tie with the various nation and the receiving international and the particular at the development of the environmental conservation efforts. Madagascar is country with a rich culture, heritage, and the ecological significance facts of both of opportunities and the challenges its developed. करेंसी की बात मैंने करी कि इसकी जो करेंसी होती है मालागैसी करेंसी होती है और मालागैसी एरियाज करेंसी होती है मैडागास्कर की। और इकोनॉमिक की बात करी है तो मैंने बताया है कि एक्चुअली करते हुए कि इसमें जो एग्रीकल्चर इसके टॉप है एग्रीकल्चर में स्पेशली इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैनिला प्लांट्स वैनिला सीड्स एंड इसकी जो टूरिज़्म की बात करी जाए तो मैडागास्कर इज़ अ यूनिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट। और इसकी जो लैंडस्केप की बात की जाए इट वॉज स्टैनिंग लैंडस्केप है। और इन्वायरमेंट की बात करी जाए तो फ्लोरा एंड फौना इट हैज़ मोर फ्लोरा एंड फौना इन दिस कंट्री मैडागास्कर कंट्री सो दैट इट मेक्स इट्स यूनिक इन द वर्ल्ड। अब इसकी जो बात करी जाए कल्चर की तो इट्स हैज़ देयर ओन कल्चर विच इज़ दिस इज़ अ वेरी यूनिक। और इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसकी जो हिस्ट्री है मैडागास्कर वाज द फर्स्ट सेटल बाय द साउथर्न एशिया अराउंड 2000 years ago अफ्रीकन सेटलिस्ट। अब इसके किंगडम की बात करें तो किंगडम की क्या बात करें वो तो सब चलता ही है इसमें। अब इसकी जो अदर जो मैंने जो आज ये जो बात करी मैडागास्कर कंट्री के विषय में इतनी जानकारी होना किसी भी कंट्री के लिए बहुत बढ़िया है कि हमारी इंडिया के अलावा भी हमारी जानकारी हमको अदर कंट्री की होती है। जब किसी की जानकारी होती है तो यही समझ में आता है कि हर एक कंट्री की अपनी खूबसूरती होती है, उनके कल्चर्स होते हैं, उनकी डाइवर्सिटी होती है, उनकी ब्यूटी होती है, उनके इनकम सोर्स ऑफ इनकम्स होते हैं, सबके डिफरेंस होते हैं। लेकिन इसीलिए शायद यही डिफरेंस की वजह से हर एक कंट्री बहुत ही खूबसूरत बन जाता है क्योंकि दे आर नॉट सिमिलर कंपैरिजन टू अदर कंट्री। तो खूबसूरती तभी बढ़ती है जब आप औरों से थोड़ा सा अलग रहते हैं। तो मैडागास्कर इज़ लाइक दैट दिस कंट्री इट इज़ नॉट सिमिलर टू अदर कंट्री कि दिस कंट्री इज सेम दिस कंट्री इज़ अ कंपैरिजन टू दैट कंट्री। नो मैडागास्कर इज यूनिक कंट्री। तो आज मैंने मैडागास्कर मीन्स मैदे के विषय में बात किया और मैदे के विषय में बात करते करते मैं मैडागास्कर कंट्री के विषय में भी बात कर लिया। तो ये बात हमारी बातें कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो खुश हो जाइए,
यदि बहुत ही बोरिंग लगी हो तो मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू।